Hi. So I'm making the most requested video, which is about my skincare routine. There's a hope that's waiting for you in the dark. I had already posted my AM routine on my Instagram, but I guess a lot of you haven't checked it out yet. So I thought I'll make a combined video of my night plus morning skincare routine together and just show you all the products that I have used so far in my journey, while also doing my nighttime skincare. So currently my skin is really not skinning. I recently got diagnosed with dermatitis, which is eczema, and it has really been difficult for me to just be myself in front of the camera. Just been so scared to create content, but today I knew I had to do this because a lot of you have requested this video. I don't want to keep you all waiting forever. So, touch wood, my situation is much better right now. And if any of you is suffering with eczema, uh, I just want to say hats off, because I think, like, for me, every day I get to discover something or the other. Like, I have become so thick skinned. I thought I have become a lot thick skinned because मुझे acne भी था, मुझे बचपन से ही था, और फेशियल हेयर और ये सब तो है ही, अब एक्जिमा भी है, तो लॉट हैज बिन ऑन माय प्लेट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फाइनली. मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ दैट अभी मेरा जो रूटीन है वो बिल्कुल एक्जिमा फ्रेंडली रूटीन है. अभी मैं एक्ने के लिए कुछ कर भी नहीं रही हूँ. यू कैन सी मेरे ब्रेकआउट हो रखे हैं बिकॉज आई एम ऑन माई पीरियड. सो ऑफकोर्स हार्मोनल एक्ने तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ज़्यादा कुछ लगा नहीं सकती फेस पे राइट नाउ, बिकॉज लिटरली एक वीक भी नहीं हुआ है मेरा डोमैट अपॉइंटमेंट का. सो दे हैड टोल्ड मी कि 20 days तक डोंट डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड इवन मेकअप एंड ऑल से मैं कुछ भी नहीं करा रही हूँ. लाइक कि लिटरली सी मेरी मूछें भी आई हुई है बिकॉज मेरे को इतना डर लग रहा है ना अभी कुछ भी थ्रेडिंग वगैरह कराने में कि मेरा पूरा फेस रेड हो जाएगा. द सिचुएशन वॉज रियली बैड. लाइक लास्ट वीक इफ यू वुड हैव सीन मी, आई लाइक लिटरली क्राइड एंड मेरे जो आंसू थे ना उससे मेरा गाल जल रहे थे. लाइक it was insane. I was really in a bad state. I'm feeling much better. So अभी जो मेरा रूटीन है वो एकदम sensitive skin और उसके लिए है. So I'll show you that also. But for acne, I'll show you अलग से. तो let's start with the acne one, I would say. And मैं night time skincare से start कर रही हूँ because मैं अभी night time skincare routine कर रही हूँ. तो I have everything over here. Starting with this. It's an oil cleanser. This is what I used to use. अभी मैंने बंद कर दिया है, but this genuinely gets everything out. This is from Cosrx. Pretty expensive, but if you don't want to use this, you can completely skip. Like, it's not compulsory to use it. And if you have oily skin, थोड़ी sensitive skin है, you can absolutely skip this. I mainly use it जब मेरे makeup होता है, या फिर जब मैंने कुछ ज़्यादा ही फाउंडेशन या फिर मैंने कोई टिंटेड सनस्क्रीन लगाई है, तो आई हैव टू यूज इट टू गेट एवरीथिंग आउट. वरना मैं सो गई तो मुझे नेक्स्ट डे पता है पूरा फेस भाई एक्ने से भर जाएगा. तो स्टेप वन इज यूजुअली द क्लेंजिंग ऑयल, दिस वन. एंड देन आई गो इन विद दिस सीटाफिल ऑयली स्किन क्लेंजर. बट राइट नाउ मैं इसका ऑपोजिट यूज कर रही हूँ बिकॉज मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई थी. और मेरे कॉम्बिनेशन स्किन है एंड अभी वेदर चेंज हो रहा है, summer season is starting, so मेरे बहुत ज़्यादा dryness हो रही थी. That's why I switched to the other one, but this one is the one I used to use. And if you have oily skin, I feel this is the best face wash out there. You should definitely give it a try. तो चलो मैं eczema जो मेरा current routine है उसका भी बता देती हूँ. For current routine, I'm using this one. Just this. Actually, it is a very good cleanser. पहले मुझे ये यूज नहीं करना आता था. लाइक मैंने बचपन में ये वाला यूज किया है क्योंकि मॉम यूज टू यूज दिस एंड शी हैज ड्राई स्किन, सो आई यूज टू यूज द सेम फेस वॉश. और सबका वही होता है कि पापा भी ये यूज करे, मम्मी भी ये यूज करे, मैं भी ये यूज करूँ, भाई भी ये यूज कर रहा, तो हम सब ये यूज करते थे. तो पहले पता नहीं था कि कैसे अच्छे से यूज करता है. तो आई रिसेंटली लर्न कि इसे थोड़ा अच्छे से रब करके एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट एंड जेंटली थोड़ा सा ऐसे रब करना होता है फेस पे एंड कीप इट ऑन फॉर लाइक सम सेकेंड्स, 10-15 सेकेंड्स तक करो अच्छे से मसाज एंड देन वॉश इट ऑफ. तो लिटरली पूरी गंदगी निकाल देता है. एंड दिस इज
रियली गुड फेस वॉश। लाइक पहले तो मैं जस्ट लगाती थी, फटाफट मूड होती थी, क्योंकि यार आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, बट बचपन में ऐसे फियर होता ना, कोई कोई पीछे से आ जाएगा तो फटाफट मुंह धो के निकल लेते थे। तो मैं बहुत गंदी तरीके से मुंह धोती थी। बट प्लीज, अगर तुम ये यूज कर रहे हो या फिर तुम इवन क्लेंजिंग ऑयल यूज कर रहे हो, तो प्लीज रिमेंबर टू मसाज इट प्रॉपरली इनटू योर स्किन फॉर एटलीस्ट फ्यू सेकेंड्स, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स करो, ताकि तुम्हारा पूरी गंदगी निकले। एंड क्लेंजिंग ऑयल का ना बेस्ट पार्ट यही होता है कि तुम्हें दिख जाता है तुम्हारी गंदगी तुम्हारे हाथ पे आएगी। जब तुम ऐसे ऐसे करके निकालोगे तो यू लिटरली गेट टू सी कि तुम्हारे व्हाइट हेड्स निकल गए, तुम्हारे ब्लैक हेड्स निकल रहे हैं। तो दैट्स हाउ यू नो कि इट्स प्रॉपरली क्लीनिंग योर स्किन। और मैं तुम्हें करके भी दिखाती हूँ, 2 मिनट लगेंगे मुझे। मैं पहले, सबसे पहला मेरा स्टेप होता है ऑफ स्किन केयर इज वॉशिंग माई हैंड्स। कुछ भी कराओ, मैंने शायद 2 मिनट पहले वॉश किया हो। अगर मैंने गलती से फोन को भी टच कर दिया उस टाइम पे, या फिर मैंने किसी और चीज को हाथ लगाया, तो मैं फटाफट हैंड वॉश करती हूँ फिर से। ओनली द एक्ने प्रोन स्किन पीपल नो these trust issues are so real भाई। मैं किसी को टच करने नहीं देती मेरा फेस, बिकॉज आई हैव सीवियर ट्रस्ट इश्यूज विद दैट। तो अभी मैंने हाथ धो लिया है। नाउ आई जस्ट वॉश माय फेस। बहुत थोड़ा सा पानी डाला है। एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस जेंटल स्किन क्लेंजर। मैं ज्यादा नहीं ले रही हूँ, मैं इतना ही लेती हूँ। इसको अच्छे से पूरे फेस पे कवर करना है। आई विल नॉट लाई, दिस इज अ वेरी थिक क्लेंजर, बट अगर मेरी स्किन इतनी ड्राई हो जाएगी, मुझे पता नहीं था इस जन्म में, बिकॉज मेरे बचपन से बहुत ऑयली स्किन रही है। तो आई थिंक फॉर नाउ इट्स अ रियली गुड क्लेंजर फॉर मी, बट आई फील कि मुझे थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ेगा बिटवीन दिस एंड द ऑयली स्किन क्लेंजर, बिकॉज समटाइम्स ऑयल की वजह से इतनी अजीब लगने लग जाती है ना, बहुत ग्लोई लुक आता है। तो I feel sometimes I'll have to alternate. I'll have to figure it out mainly. मुझे डॉक्टर ने भी यही कहा कि थोड़ा अगर ड्राइनेस ठीक हो जाती है, then you can switch slowly back to your oily cleanser, because है तो मेरी स्किन ऑयली ही, मतलब ज्यादा ऑयली है, टी जोन बहुत ज्यादा ऑयली है। तो और एक्ने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एज मच ऑयल एज यू कैन फ्रॉम योर फेस। लाइक तुम्हारे फेस पे होना ही नहीं चाहिए ऑयल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि एक्ने भी ना हो। ओके, मैंने फेस वॉश कर लिया है। एंड इफ यू नो मी, आई नेवर यूज अ टॉवल टू पैड ड्राई माई फेस। मैं हमेशा खुद से ड्राई होने देती हूँ अपने फेस को। आई डोंट यूज एनीथिंग। एंड आई फील इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, प्लीज डोंट यूज लाइक एक ही टॉवल तुम पूरे 2-2 हफ्ते चला रहे हो, इवन एक पूरा हफ्ता, because you don't know the amount of germs that are there in your washroom. I used to feel कि हाँ मेरा वॉशरूम साफ है, या फिर मैं हर हफ्ते धोती हूँ टॉवल। You don't know the amount of like germs around your washroom. So I really would suggest don't use a towel. Instead, if you want, you can get those tissues or something जो at least pack में से निकल रहे fresh. तो that is much better than the towels, is what I feel. एंड ये मैंने करना बंद कर दिया है सिंस 1.5 years। एंड आई फील इंस्टेंटली कि मेरी स्किन ना हाइड्रेट भी हो जाती है, प्लस वंस इट ऑल ड्राइज आउट, यू कैन लिटरली सी देयर इज अ ग्लो दैट माई स्किन इज क्लीन। तो जब मैं टावल से फटाफट करती हूँ तो मेरी स्किन और इरिटेट होती थी, तो आई स्टॉप डूइंग दैट कम्प्लीटली। इन द नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आई यूज टू फॉलो for my active acne specifically, it's for that. And मैंने आई थिंक इससे पहले वाले वीडियो में बताया था दैट आई ऑल्टरनेट, आई डोंट यूज द सेम प्रोडक्ट्स एवरी डे। तो मेनली मैं सैलिसिलिक एसिड ट्वाइस अ वीक यूज़ करती थी, तो बाकी 5 दिन आई वुड यूज़ एजिलिक एसिड, विच इज़ गुड फॉर फेडिंग डार्क स्पॉट्स एंड इवन रिड्यूसिंग एक्टिव एक्ने। यूजुअली एजिलिक एसिड यूज़ करते हो, वो ख़त्म हो गया है। एंड आई ट्राइड फाइंडिंग इट, बट अभी मेरे को उसका खाली पैक भी नहीं मिल रहा। आई थिंक आई हैव थ्रोन इट। सो करेंटली आई एम यूजिंग दिस वन बाय पॉलाज चॉइस। ये मैंने कहीं इसके लिए पढ़ा था दैट्स इट्स अ रियली गुड वन, बट आई फील लाइक दिस इज़ नॉट दैट ड्राइंग। मतलब इससे पहले मैं द ऑर्डिनरी का यूज़ करती थी, उसकी पिक्चर मैं यहाँ लगा देती हूँ, बट
आई थिंक ऑर्डिनरी वन वॉज वे बेटर. बहुत एक्सपेंसिव है ये दोनों प्रोडक्ट्स, आई नो, बट इट्स रियली इफेक्टिव. यू रियली कैन ट्राई एजिलिक एसिड. अगर कोई और भी सीरम आपको मिलता है एजिलिक एसिड का, आई वुड हाईली रिकमेंड यूजिंग इट फॉर एक्टिव एक्ने, फॉर डार्क स्पॉट्स, इवन रेडनेस. सब मेरे बहुत सीवियर हो गए थे एक पॉइंट पे एक्ने, इतने ज़्यादा कि मतलब मैं सुबह उठती थी और मैं देखती थी मेरे हर रोज़ बढ़े जा रहे थे. दैट वॉज द point I realized how important azelaic acid was for me. आई रिमेंबर मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी लास्ट ईयर एंड वहाँ पे ना मेरे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे और रोज़ मेरे नया एक्ने होता था. तो मेरे पूरे ऐसे क्लस्टर में होते थे बहुत पेनफुल वाले, और मैं उन पे एजिलिक एसिड लगा के सोती थी. सुबह उठती थी तो वो बहुत कम होने लग गए थे खुद ही. तो वो लगाने से भी इतनी हेल्प हुई है ना, आई कैन नॉट टेल यू. So if you can invest, try the ordinary one. Otherwise, if you can find an alternative, then there's nothing like it. And please try azelaic acid. तो उसको आप लोगों को सिर्फ अपनी ड्राई स्किन पे लगाना होता है ऑन एरियाज वेर यू हैव एक्ने और वेर यू हैव स्पॉट्स और रेडनेस. जहाँ भी तुम्हें लगाना है तुम लगा के सो जाओ. एंड मैं उसके ऊपर मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करती थी बिकॉज मेरे को लगता था उससे पूरा हट ही जाएगा. मतलब ऐसे ऐसे लगाते हो तो उतनी देर में तो तुम्हारा एजिलिक एसिड हर जगह चला जाएगा. तो मैं स्पॉट ट्रीटमेंट करके मैं सो जाती थी और सुबह उठ के काफ़ी हद तक वो कम हो जाता था. बट ऑफ कोर्स आई वुड से कि अगर तुम्हारी स्किन बहुत ड्राई है देन मॉइस्चराइज करके ही सोना. अदरवाइज मेरे लिए तो बहुत ऑयली स्किन थी पहले से ही, तो मैं नहीं करती थी और मेरा काम हो जाता था. सैलिसिलिक एसिड इज़ अ गेम चेंजर अगेन. ये तो मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ इवन दो मेरे एक्जिमा है और मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने को मना किया है. बट आई फील दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. आई यूज़ मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड. दिस इज़ रियली गुड. आई फील इवन प्लम का बहुत अच्छा है, मेरे पास है, उसकी भी बॉटल है. तो मैंने ऑलरेडी ख़त्म किया था, उसके बाद मैंने ये वाला मंगाया था. ये वाला काफ़ी अच्छा है. प्लम वाला मुझे लगता है थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली ज़्यादा है, बट दिस वन इज़ लाइक spot on. It gives you the effect, it gives you the results. and ये मैं directly यूज़ नहीं कर सकती because again मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड ये again एक्टिव है, तो मैं डायरेक्टली तो नहीं लगाती. मैं पहले ये लगाती हूँ नेल म्यूसिन. दिस इज़ अगेन बाय कॉसारेक्स और मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे लगा लेती हूँ. दिस इज़ सो गुड फॉर हाइड्रेशन. इट गिव्स दैट ग्लास स्किन इफेक्ट इवन दो मेरी स्किन ग्लास स्किन बिल्कुल भी नहीं है. बट नो, आई फील इट्स सो मॉइस्चराइजिंग. इट्स गुड फॉर रिपेयरिंग योर बैरियर. एंड जब तुम कोई एक्टिव ऐसा यूज़ करने वाले हो जो तुम्हें पता है कि दिस कैन बी अ लिटिल हार्मफुल, तो आई थिंक it's a perfect product for that. And when you have acne, your barrier gets really bad. I feel मैंने देखा है अपनी स्किन पे खुद होते हुए कि मेरा बहुत ज़्यादा बैरियर ख़राब था. जब आई स्टार्टेड डूइंग स्किन केयर मुझे दिखता है अब डिफरेंस. कुछ तो हुआ है भाई, इससे इससे कुछ तो होता है. आई सीन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स ने स्टार्ट किया है एंड ट्रस्ट मी इवन आई एम गोना स्टार्ट यूजिंग दोज बिकॉज ये ख़त्म होने का वेट कर रही हूँ मैं. तो इसके बाद आई एम गोना रीस्टॉक with some good affordable brands. I'll let you know if I'll use any other brand. Salicylic acid का ना रूल है that you need to use it on dry skin. तो अभी मैं पूरा हाइड्रेट जो मैंने किया है उसको अब्जॉर्ब होने दूंगी स्नेल म्यूसिन को अपनी स्किन में. एंड तब तक ना मैं ये करती हूँ. तो नेक्स्ट इज लिप बाम. तो मैं ये लनेश के लिप स्लीपिंग मास्क यूज़ करती हूँ एंड इसके मैंने 2 डब्बे ख़त्म करे हैं 2 साल में. लाइक इट लास्ट सो लॉन्ग. इमेजिन 2 साल हो गया मुझे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट, एंड ये मेरा सेकंड डब्बा है. आई एम नॉट जोकिंग, इससे ज़्यादा मैंने नहीं ख़रीदा है. तो आई फील इट्स अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट. एंड ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग तो है ही एंड ज़्यादा यूज़ करना भी नहीं होता, बहुत थोड़ा सा लेके आई अप्लाई इट ऑल ओवर माई लिप्स. ना आई एम नॉट गोना से ये पूरा सुबह तक तुम्हें पूरा इफेक्ट देगा of moisturized lips, but it is really good. I feel एटलीस्ट 2 से 3 घंटा तो कॉन्स्टेंटली रहता ही है लिप्स पे. एंड सुबह उठ के ना मुझे जैसे मैं कुछ और लगा के सोती थी तो मुझे दिखता था कि मेरे ऐसे लिप्स बहुत फट गए हैं टाइप्स. तो सुबह उठ के ऐसे निकल रही होती थी उनकी स्किन. तो अब ऐसा नहीं होता बिकॉज दिस इज़ रियली गुड. आई थिंक this is one of my favorite lip balms that I have tried and I'm a really big
lip balm addict. मतलब if I show you guys my collection of lip balms, you'll call me crazy. तो मेरे लिए तो lip balms बहुत important है. Next up, I'm trying this eye cream by Beauty of Joseon. I don't know the pronunciation. तो ये मैंने रिसेंटली खरीदा था कोई नायका की सेल में. आई थिंक 2 महीने ही हुए हैं इसको यूज़ करे हुए. मतलब मैं कॉन्स्टेंटली यूज़ भी नहीं करती बिकॉज अगैन मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है. तो यू नो इट हैज़ रेटिनॉल एज वेल, रेटिनल. तो इससे थोड़ा इरिटेट होती है स्किन. तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बहुत कम लेके पूरी आइज़ पे, ओवर द आइज़ एंड अंडर द आइज़ मैं लगाती हूँ. एंड आई फील इससे कुछ तो डिफरेंस हुआ है बिकॉज मैं ना एकदम उल्लू लगने लग गई थी बाय दिसंबर. तो मुझे कुछ करना ही था अपने आइज़ के लिए. तो मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया है एंड आई फील दिस इज़ रियली गुड. इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, नथिंग लाइक इट. प्लस इट लास्ट सो लॉन्ग. मतलब मैंने 2 महीने यूज़ किया बट ये अभी भी उतनी भारी है क्योंकि लिटरली सिर्फ एक ही बार इसको तुम्हें पंप करके यूज़ करना है. मतलब इतनी सी क्रीम निकलती है और वो तो भाई दोनों आइज कवर कर लेगी. सो आई फील इट्स अ गुड प्रोडक्ट एंड मैंने इस पर बहुत रिसर्च करके ख़रीदा था. इससे पहले ना मैं ये यूज़ करी थी ग्लाइकोलिक ब्राइट लॉरियल का. एंड आई फील इट गिव्स दैट कूलिंग सेंसेशन बिकॉज इसका जो एप्लीकेटर है काफ़ी ही अच्छा है. बट इट डिडंट डू अ लॉट फॉर मी. एंड इससे भी पहले मैंने एम कैफीन का वो कॉफ़ी वाला ट्राई किया था एंड दैट वाज, ओ गॉड, आई फील लाइक मैंने खुद को इतना कन्विंस करने की कोशिश करी थी ना कि अच्छा प्रोडक्ट है, काम कर रहा है, कुछ पे काम कर रहा है, बट इट वाज लिटरली डूइंग नथिंग फॉर माय आईज. मतलब it was bullshit. I feel like that product did not do anything for me. If it did do anything for you, then I'm sorry, but for me it was like a joke. मेरी स्किन थोड़ी ड्राई हो चुकी है तो I'm gonna use salicylic acid serum. इसको भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ मैं. तो अभी मेरा सेकेंड डे है इस वीक यूज़ करते हुए salicylic acid. I really like to use it especially on my nose. मतलब एक्ने नहीं हो नोज पे तो भी आई यूज़ इट बिकॉज इससे ना बहुत हेल्प होती है ऑन योर ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो स्पेशली मेरे तो बहुत ज़्यादा नोज पे ही आता है. तो मैं तो अच्छे से लगाती हूँ नोज पे. बेस्ट पार्ट इज कि जब तुमने वो स्नेल म्यूसिन लगा लिया ना देन इट बिकम्स सो लाइक बिगिनर फ्रेंडली टू यूज़ दिस. आई नो इसका इफेक्ट इतना नहीं होगा विद द स्नेल म्यूसिन ऑफ कोर्स, बट मैं अपनी स्किन को ड्राई आउट भी नहीं कर सकती जस्ट फॉर यू नो यूजिंग दिस प्रोडक्ट. तो ठीक है, स्लो एंड स्टेडी इज़ द बेस्ट वे टू गो फॉर स्किन केयर. आई वुड स्टिल से कि डोंट जंप ऑन द ट्रेंड्स, don't try out all the products that I'm also telling you today. But if you want to really try something out, I would genuinely recommend trying out the serums, especially azelaic acid. So ले ही लो. I feel within 24 hours you will see results with it. मतलब वो तो ले ही लेना. अगर कुछ और ना लो आज वो तो ले ही लेना. So now last step for my nighttime skincare is this aloe vera cream. This is again dermat prescribed and it's not really the best cream for oily skin, but for barrier repair it's a good cream. It has vitamin E in it and थोड़ी थिक तो ये है बट आई फील रात को तो मैं ज़रूरत ज़्यादा होती है मॉइस्चराइजर्स की. एंड या दैट्स अबाउट इट फॉर माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती हूँ, मैं सो जाती हूँ. एंड नाउ आई एम गोना शो यू माई AM skincare routine products. So currently again अभी तो I'm just using this cleanser, that's all I use. But इससे पहले of course मेरा दूसरा cleanser होता था for acne and just you know cleansing everything properly in the morning. तो मैं ये यूज़ करी थी by Cosrx. This is their low pH good morning gel cleanser. It has a lot of things, by the way. It's really good, I feel. इससे पहले मुझे लगा था कि you know salicylic acid face washes are good for active acne and you know acne prone skin. तो मैं ये यूज़ करती थी बहुत ज़्यादा और मुझे दिखता था कि मतलब मेरी स्किन ना थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होने लग गई थी बिकॉज दिस इज रियली लाइक सैलिसिलिक एसिड डेली इज नॉट राइट. आई फील ये मैंने बहुत लेट रियलाइज किया. तो इफ यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक ऑफ यूजिंग an active based wash every single day even for your body, तुम salicylic acid
बॉडी वॉश रोज यूज कर रहे हो तो तुम अपनी स्किन को ड्राई आउट कर रहे हो. Any gentle cleanser that suits your skin, please try out that and don't focus on a lot of active based face washes because उनसे तुम्हारी स्किन बहुत ड्राई आउट हो रही है, उससे तुम्हारा बैरियर खराब हो रहा है और इट डज नॉट इवन गारंटी कि तुम्हारे एक्ने क्लीन हो रहे हैं उससे. तो प्लीज डोंट डू दैट. अगेन आफ्टर एयर ड्राइंग माई फेस for my morning skincare routine, I use this Deconstructs Clearing Serum. This has a lot of niacinamide and alpha arbutin, which helps reduce redness, helps reduce marks, but it does not guarantee any removal of scars, by the way. और वो कोई भी सीरम तुम्हारे लिए नहीं कर सकता है. Scars which are pitted, which are old, cannot be removed, but this definitely helps with reducing oil production, sebum production, जो actually कॉज होता है एक्ने का. जिसके भी ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन है उसके एक्ने होते हैं. तो दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट फॉर दैट. आई फील it's so beginner friendly and it has never ever irritated my skin. I really personally love it. उसके ऊपर I just use my cream which is again aloe vera and उसके ऊपर I am using my sunscreen. Currently this is the one I'm using and I'm obsessed with. Again, this is by Wishcare and it has SPF 50 PA++++. It is an oil balancing sunscreen. I feel it's so good, so lightweight, and it does not make you look like you're wearing anything. मतलब जब मैं लास्ट स्टेप ऑफ सनस्क्रीन पे होती हूँ यूजुअली मेरी स्किन ऐसे चमकने लग जाती थी, बट this is really good. It has a lot of niacinamide again, which is good for balancing the oil production. So 10 on 10 from my side. For lip balm, I use this Laneige lip balm. It's again really good because ये मेरे मास्क प्लस लिप बाम के पैक में मुझे मिली थी. तो ये भी मैंने आई थिंक अभी तक सिर्फ एक ही ख़त्म करी है 2 साल में. तो I don't know what they're doing with these products, but they're insane. The quantity is insane. So lastly, because अभी winters थी तो मेरे lips बहुत dry हो जाते थे, तो I was using this Tipsy lip oil. It has SPF 25 or 30. But it's called an SPF lip oil, by the way. It keeps your lips hydrated and moisturized for so long. I love it. And I was using both of these together, pehle lip balm and then lip oil as a cover. And for your lips also, you really need SPF. So please get yourself some SPF lip balms if you already don't have. If you guys want a recommendation video, I can do that for you. I also have used this one and I love it. I still use it. For summers, I'm definitely keeping this because I don't want too much of oil, too many layers on my lips. So I'm gonna use this throughout my summers. But yeah, if you want more recommendations, let me know. And I hope you guys liked this video. And yeah, thank you for being here. I love you guys so much. Comment down if you have more questions about my skincare or just any question that you want to ask me. I would be happy to respond. And yeah, thank you for watching. Bye. You should know